Aqib. In front of you, I'm class in Nadra, I'm 13. I really thanks all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about the Islamic scripture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Very good evening to all of you. I'm Muhammad Amawazvi. In front of you, I'm class in Nadra. I'm 12. I really thanks all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about scripture. My dear, you ready for Islamic question? Yes, I'm ready. What is faith? To believe in all commandments and teaching Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought from Allah Azza wa Jal, and to accept all of them wholeheartedly. It is called faith. What are the types of the scripture? There are two types of descriptions of faith. Number one, Iman Mujmal. Number two, Iman Mufassal. What is Iman Mujmal? A brief description of faith is called Iman Mujmal. Recite about Iman Mujmal. إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع What is Iman Mufassal? A detailed description of faith is called إيمان مفصل. Recite about Iman Mufassal. إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره وخيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. 5 before 5. Dear respected guide children, certainly life is very short. The time we have once spent will never come back. And any hope of having time in future, it is as we don't know what would happen to us in future. Perhaps we may have met our death the next the moment the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated value 5 things. Before 5 things. Number 1, youth before old age. Number 2, health before illness. Number 3, wealth before illness. Number 4, leisure before business. Number 5, life before death. Who has created us? Allah Azza wa Jalla has created us. Who has created the earth, the sky, the sun, the moon, and The earth, the sky, the sun, the moon, and the stars, created by Allah Azza wa Jalla. Who do we worship? We worship Allah Azza wa Jalla. Who listens to and sees everything? Allah Azza wa Jalla listens to and sees everything. Can anything be done from Allah Azza wa Jalla? No, nothing can be done from Allah Azza wa Jalla. He knows everything. What is beloved name of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? What is blessed name of Prophet sallallahu alaihi wasallam is Muhammad. What is In which city? In which city did the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took place? The blessed oath of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took place in Makkah al-Madinah, a famous city of Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullah. कारी गुलाम रब्बानी और कारी मोहम्मद तौसीफ, इन दोनों बच्चों की आज की रात की दस्तार भी है, वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे। नारा लगाएं, नारे तकबीर। रहमतुल्लाहि या अजीज। اسمي غلام رباني وأنت يا أخي ما اسمك الكريم؟ اسمي توصيف। هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. وأنت؟ أنا كذلك طالب. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في شهبور. وأنت أين تسكن؟ أسكن في منطقة بيركرج مرادباد. أطال الله صباحك يا أخ الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة وسؤلا ليلا والنهار. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال يا أخي. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام، مدرسة مقصودية. وأنت؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام، مدرسة مقصودية. في أي صف تدرس؟ أدرس في أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول أيضا. ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل، أعني ولد يوم الاثنين. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت أمه؟
40 عاما. من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ التجارة. من هي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، والإناث فاطمة وركية وزينب وأم كلثوم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ 40 عاما. ما اسم الملك الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. ما أفضل ما نزل من القرآن الكريم؟ أفضل ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ألخ. كم كانت مدة الدعوة سر؟ 3 سنوات. إلى أين كانت الهجرة الأولى للصحابة؟ إلى الحبشة. كان سببا في إسلام أهل المدينة؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إلى المدينة. ما اسم أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مسجد قباء. كما حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة وهي حجة الوداع. كم سنة استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مدينة المنورة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ 63 سنة. اذكر 7 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثاني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. ثالث سودة بنت سمعة رضي الله عنها. رابع حفصة بنت عمر رضي الله عنها. خامس زينب بنت حجش رضي الله عنها. سادس زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. سابع أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. اذكر 5 من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة بدر. ثاني غزوة أحد. ثالث غزوة الأحزاب. رابع غزوة خيبر. خامس غزوة فتح مكة. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ محبته وتصديقه واتباعه والصلاة عليه. من هم الخلفاء الراشدون؟ أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. رابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو أفضل من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو أفضل من آمن من الصبيان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. من هو سيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من هي أفضل شهيدة في الإسلام؟ سمية بنت الخجات رضي الله عنها. من هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. توصيف भाई आपने मेरे सवालों के जवाबात बहुत ही उम्दा तरीके से दिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह गुलाम रब्बानी भाई आपने भी मुझसे बहुत उम्दा सवाल किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है आपके इल्म और अमल जिंदगी ने दिया साथ। फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद। बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अर्श और मोहम्मद उवैस। हाफिज मोहम्मद अर्श, हाफिज मोहम्मद उवैस, जल्दी से आ जाएं। हाफिज मोहम्मद अर्श, हाफिज मोहम्मद उवैस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, बरकात इस्लाम मकसूदिया।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अर्श रज़वी है। मैं बरकत इस्लाम मदरसा मकसूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मिलक जुम्मा वाली में रहता हूँ। और प्यारे भाई, आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद उवैस रजा है और बरकत इस्लाम मदरसा मकसूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मौजा गुलरिया में रहता हूँ। क्या प्यारे भाई, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त किस रुख बैठना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त किबला रुख होना चाहिए कि ये मुस्तहब है। आप ये बताइए, तकिया या टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? तकिया या टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि सीधा बैठकर खुशू और खुजू के साथ तिलावत करनी चाहिए। आप ये बताइए, क्या लेटकर कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, लेटकर भी कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जबकि पाँव सिमटे हुए हो। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने से पहले तहफ्फुज़ यानी औज़ बिल्लाह शरीफ और तस्मीह यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए, वो कौन सी जगह है जहाँ कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज है? इजाजत की जगह गुस्ल खाना मसलन बैतुल खुला में कुरान शरीफ पढ़ना मना है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तरफ पीठ या पाँव करना कैसा है? कुरान शरीफ की तरफ पीठ या पाँव करना अदब के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान जमागी आ जाए तो क्या करना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान अगर जमागी आ जाए तो तिलावत मौकूफ यानी बंद कर दे, क्योंकि जमागी शैतानी आता है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान पीर साहिब, आलिम दीन या उस्ताद साहिब या वालिदैन में से कोई आ जाए तो क्या उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, तिलावत मौकूफ करके उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं। आप ये बताइए, बाज़ लोग कहते हैं अगर कुरान शरीफ खुला हुआ हो तो उसे शैतान पढ़ता है, इसकी क्या हकीकत है? ये बात गलत है और इसकी कोई असल नहीं। आप ये बताइए, कुरान शरीफ को जुज़दान या खिलाफ में रखने का क्या हुक्म है? कुरान शरीफ को जुज़दान या खिलाफ में रखना जायज है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौरे मुबारक से मुसलमानों का इस पर अमल है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ को बुलंद आवाज से पढ़ना कैसा है? कुरान शरीफ को बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है कि जहाँ तक आवाज पहुंचेगी वाशिया पढ़ने वाले के ईमान की भरोसे क़यामत कब होगी। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए, किसी नमाजी बीमार या सोने वाले को तकलीफ न पहुंचे। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत करते, कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के बजाय बातें करना या इधर उधर देखना कैसा है? कुरान शरीफ की तिलावत खामोशी। आप ये बताइए, बहुत से इस्लामी भाइयों का कुरान पानी बगैर बुलंद आवाज से कुरान आप ये बताइए, मदरसे में तलबा जो बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसका क्या हुक्म है? माशाअल्लाह भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। क्यों भाई, मैं भी आपसे कुछ दीनी सवाल कर सकता हूँ? कीजिए अर्श भाई, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये बताइए, ज़कात किसे कहते हैं? माल के एक मखसूस हिस्से का जो शरअ ने मुकर्रर किया है अल्लाह के लिए किसी मुसलमान फकीर को मालिक बना देना, बशर्ते कि वो फकीर हाशमी ना हो, ज़कात कहलाता है। भाई आप ये बताएं, ज़कात किस सन में फर्ज हुई? ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई। आप ये बताएं, ज़कात किन लोगों पर फर्ज है? चंद शर्तों के साथ मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप ये बताएं, वो चंद शर्तें क्या हैं? वो चंद शर्तें ये हैं, बालिग होना, आकिल होना, आजाद होना, निसाब का मालिक होना, निसाब का कर्ज से फारिग होना, निसाब का हाजत असलिया से फाजिल होना, माल का नामी होना और माल पर साल गुजरना। भाई आप ये बताएं, साहिब निसाब कौन है? जो आदमी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर रुपया पैसा या सामान तिजारत का मालिक हो, वो साहिब निसाब है। आप ये बताएं, अंबिया इकराम पर भी ज़कात फर्ज है? अंबिया इकराम पर ज़कात बिल इजमा फर्ज नहीं। अंबिया इकराम के माल पर ज़कात क्यों फर्ज नहीं? अंबिया इकराम के पास जो कुछ होता है वो माल अमानत है और माल अमानत पर ज़कात फर्ज नहीं। बस भाई आप ये बताएं, ज़कात के फवाइद और फ़ज़ाइल क्या हैं? माशाअल्लाह अर्श भाई, आपने वक्त की नब्ज देखकर बहुत उम्दा सवाल किया गया। अक्सर लोग ज़कात नहीं निकालते, जिसकी वजह से उनका माल पाक और साफ नहीं होता और नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं होती। प्यारे भाई, ज़कात के बहुत से फवाइद और फ़ज़ाइल हैं।
उनमें से मैं कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। ज़कात देना तकमीले ईमान का जरिया है। ज़कात देने वाले पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बरसात होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अअराफ में इरशाद फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़कात। ज़कात देने से तकवा हासिल होता गया। ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होता गया। ज़कात अदा करना अल्लाह ताला के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वाले की सिफात में से है। ज़कात अदा करने से गरीब इस्लामी भाइयों की जरूरत पूरी हो जाती है। ज़कात देने से माल पाको साफ हो जाता है। ज़कात देने से लालच बुखल जैसी बुरी सिफात से अगर दिल में हो तो छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सखावत और बख्शिश का महबूब वस्फ मिल जाता है। ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुनिया व आखिरत में बढ़ता है। ज़कात देने वाला शर से महफूज हो जाता है। ज़कात देना हिफाजत माल का सबब है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खां अली की रहमत व रिजवान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात कम नहीं होती, हर साल बढ़ती रहती है। ये तजुर्बा है। उवैस भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरह जवाब दिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया फरीदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम गुलाम जिलानी है और मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मेरा मौज़ा शाहपुर है। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यान है। मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मेरा मौज़ा झादे वाली मिलक है। प्यारे भाई, आपसे कुछ दीनी सवालात करने हैं। जी इंशाअल्लाह करिए, मैं आपके सवालातों के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? भाई आपको पता नहीं है, दो मुसलमानों का बवक्त मुलाकात सलाम करके दोनों हाथों से मुसाफहा करना यानी दोनों हाथ मिलाना सुन्नत है। रुखसत होते वक्त सलाम भी कीजिए, हो सके तो हाथ भी मिला सकते हैं। जी भाई, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक पढ़ते हैं तो इन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़कर हो सके तो ये दुआ भी पढ़ लीजिए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। दो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कबूल होगी और हाथ जाने से पहले दोनों की मग़फ़िरत भी हो जाएगी। आपस में हाथ मिलाने से दुश्मनी दूर होती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और किसी दूसरे के दिल में अदावत ना हो तो हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला इन दोनों के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। और जो कोई मुसलमान भाई अपने भाई की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखे, उसके दिल या सीने में अदावत ना हो तो निगाह लौटने से पहले दोनों के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिलाना मुस्तहब है। दोनों तरफ से एक हाथ मिलाना सुन्नत नहीं, मुसाफहा दोनों हाथों से करना सुन्नत है। बाज़ लोग सिर्फ उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, ये भी सुन्नत नहीं। हाथ मिलाने के बाद हाथ चूम लेना मकरूह है। मुसाफहा करते यानी हाथ मिलाते वक्त सुन्नत यह है कि हाथ में कोई चीज मतलब रुमाल वगैरह हाइल ना हो, दोनों हथेलियां खाली हो और हथेली से हथेली मिलानी चाहिए। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का 700 से ज़ायद मर्तबा हुक्म फरमाया है। आप ये बताइए, जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे उसके बारे में क्या हुक्म है? जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है। आप ये बताइए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है।
आप नमाज पढ़ने के चंद फजाइल बताएं। नमाज पढ़ने के चंद फजाइल ये हैं, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाजी का भरोसे क़ियामत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नमाजी को क़ियामत के दिन दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि बरोज़ क़ियामत उसे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला का दीदार नसीब होगा। आप ये बताइए नमाज न पढ़ने के क्या नुकसानात हैं? नमाज न पढ़ने के नुकसानात ये हैं, बेनमाजी से अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला नाराज होता है, बेनमाजी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, बेनमाजी कब्र में एक गंजसा मुसल्लत कर दिया जाएगा। जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर दूसरे तरफ बेवस्त हो जाएंगी। क्या भूलकर खाने पीने से रोजा टूट जाता है? जी नहीं, भूलकर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। रोजा कब फर्ज हुआ? रोजा 10 शाबानुल मुअज़्ज़म जो हिजरी को फर्ज हुआ। क्या रोजा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जी नहीं, बल्कि हदीस पाक में है कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। रोजा रखने की कोई फजीलत बयान करें। हदीस पाक में है कि जो शख्स माह रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून के साथ रखे उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज जबरदस्त का बनाया जाएगा। 4 मशहूर फरिश्ते कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं? 4 मशहूर फरिश्ते ये हैं, अव्वल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, चौथे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। और ये काम करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला की वही अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाना, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रिज़्क़ पहुँचाना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क़ियामत के दिन सूर भूकना है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रूह कब्ज़ करना है। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन का क्या काम है? लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखना है। जी भाई, बेशक। जी भाई गुलाम जिलानी भाई, आपने मेरे सवालातों के जवाबात बेहुस्ने खूबी दिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। जहन भाई, आपने मुझसे बहुत अच्छे सवालात किए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ है कि आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद। बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद कासिम। मोहम्मद रियाज बस ये आखिरी जोड़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद कासिम रज़वी है। मैं बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मोहल्ला तोड़ेपुरे में रहता हूँ। प्यारे भाई, आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मोहल्ला पालेले में रहता हूँ। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे कुछ दीनी सवालात कर सकता हूँ? जी पूछिए, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए, सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया। इसके बाद अर्श आज़म और कलम को पैदा किया गया। सबसे पहले जमीन का कौन सा हिस्सा बना? काबा मुअज़्ज़मा का हिस्सा बना। जमीन में सबसे पहले कौन सा पहाड़ बना? जबल अबू कुबैस। दिन और रात में सबसे पहले किसकी तख्लीक हुई? रात की। 7 दिन में सबसे पहले किस दिन की तख्लीक हुई? हफ्ते के दिन की। चांद और सूरज में सबसे पहले किसको बनाया गया? सूरज को। सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया गया? मछली को। सबसे पहले अजान किसने पढ़ी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। जमीन में सबसे पहले कौन सा दरख्त लगा? जैतून का दरख्त। बाद लोग कहते हैं छुआरे का दरख्त। सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले सुभान रब्बियल आला किसने कहा? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले लफ्ज़ अना यानी मैं किसने कहा? इब्लीस ने। सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई?
इब्लीस ने। सबसे पहले धोखेबाजी किसने की? इब्लीस ने। सबसे पहले गीबत किसने की? इब्लीस ही ने। सबसे पहले कुफ्र किसने किया? इब्लीस ने। क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम का लिबास किसको पहना जाएगा? इब्लीस को। सबसे पहले कौन सा गुनाह सादिर हुआ? हसद जो जमीन पर काबिल से और आसमान में इब्लीस से सादिर हुआ। सबसे पहले खुदा होने का दावा किसने किया? शद्दाद ने। सबसे पहले काला खिताब किसने लगाया? फिरौन ने। सबसे पहले सूली की सजा किसने दी? फिरौन ने। सबसे पहले हाथ पैर कटवाने की सजा किसने दी? इसका मौजूद भी फिरौन है। सबसे पहले पक्की ईंट किसने बनवाई? फिरौन ने। सबसे पहले छींक किससे आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त रूह आपकी नाक में पहुंची तो आपको छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले कौन सा कलमा निकला? जब आपको छींक आई तो आपने जबान से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यही कलमा आपकी जबान से जारी हुआ। सबसे पहले यरहमुकल्लाह किसने कहा? खुदा ने कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के छींक के जवाब में सबसे पहले सलाम किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को किया और फरिश्तों ने उसके जवाब में अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले किस चीज का लिबास पहना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भेड़ के बालों को काट कर अपने लिए जुब्बा तैयार किया और हजरत हव्वा के लिए एक दरामिस कमीज के और एक ओढ़नी तैयार की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद सबसे पहले कौन सा खाना तनावल फरमाया? गेहूं की रोटी। सबसे पहले खेती बाड़ी का काम किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले गेहूं की खेती किसने की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले जमीन में पौधा किसने लगाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले कपड़ा बुनने का काम किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही ने। सबसे पहले रुपया अशरफी किसने तैयार की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले सर का बाल किसने मुड़ाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुड़ाया और मोड़ने वाले हजरत जिब्राइल अमीन थे। सबसे पहले किसने लिखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। माशाल्लाह कासिम भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह रियाज भाई, आपने मुझसे बहुत अच्छे सवाल किए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ आपके इल्म अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकत इस्लाम मदरसा मकसूद या पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद रज़ा और मुकर्रम, मोहम्मद मुकर्रम, हाफिज मोहम्मद रज़ा हुसैन और मोहम्मद मुकर्रम आ जाइए जल्दी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठे रहें, इन बच्चों के बाद इंशाअल्लाह फौरन बाद तकरीर है। बैठ जाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आपका मुआहदा क्या है? प्यारे भाई, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा हुसैन है। मैं बरकत इस्लाम मदरसा मकसूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मेरा मोदा चौहान अगला है। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आपका मोदा क्या है? प्यारे भाई, मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम रदबी है। मैं बरकत इस्लाम मदरसा मकसूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मेरा मौदा चौहान अगला है। प्यारे भाई, आपसे मैं कुछ दीनी सवालात कर सकता हूँ? प्यारे भाई, सवालात कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए, उर्फ मुफरिदात कितने हैं? हुरूफ मुफरिदात 29 हैं। आप ये बताइए, उर्फ मुस्तअलिया कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ मुस्तअलिया 7 हैं और वो ये है ख, साद, वाद, तो, वा, गैन, क़ाफ। आप ये बताइए, उर्फ मुस्तअलिया को कैसे पढ़ते हैं और इनका मजमुआ क्या है? हुरूफ मुस्तअलिया को हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ते हैं और इनका मजमुआ खुस्सा वक्तिन क़िद है। आप ये बताइए, होठों से अदा होने वाले हुरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? होठों से अदा होने वाले हुरूफ 4 हैं, बा, फा, मीम, वाव। आप ये बताइए, हुरूफ सफीरी यानी सीडी वाला हुरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ सफीरी क्या यानी सीटी वाले हुरूफ 3 हैं, जा, सीन, सौद।
आप ये बताइए हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर और पेश को हरकत कहते हैं। आप ये बताइए हरकत किस कहाँ पढ़ेंगे? हरकत को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे। आप ये बताइए तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। आप ये बताइए हुरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ मद्दा 3 हैं और वो ये है अलिफ वाव या। आप ये बताइए हुरूफ अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा कब होगा? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले शेर हो तो या मद्दा होगा। आप ये बताइए हुरूफ मद्दा को किस कहाँ पढ़ते हैं? हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। आप ये बताइए खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ा सबर खड़ा शेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। आप ये बताइए खड़ी हरकत को किस कहाँ पढ़ते हैं? खड़ी हरकत को हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। आप ये बताइए हुरूफ लीन कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ लीन तो है वाव और या। आप ये बताइए हुरूफ लीन को किस कहाँ पढ़ते हैं? हुरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटके दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। आप ये बताइए हुरूफ लीन वावलीन यालीन कब होगा? वाव साकिन से पहले जबर हो तो वावलीन होगा, या साकिन से पहले जबर हो तो यालीन होगा। आप ये बताइए हुरूफ क़लक़ला का माना क्या है? क़लक़ला का माना जुम्बिश और हरकत के है, यानी इन हुरूफ के अदा होते वक्त मखरज में जुम्बिशी होती है जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकलती है। आप ये बताइए हुरूफ क़लक़ला कितने हैं और कौन कौन से हैं और इनका मजमुआ क्या है? हुरूफ क़लक़ला 5 है और वो ये है क़ाफ क़ा बा जीम दाल। हुरूफ क़लक़ला का मजमुआ कुतुब जद्दी है। आप ये बताइए क़लक़ला में कब क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा? जब हुरूफ क़लक़ला साकिन हो तो इनमें क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा। आप ये बताइए अगर क़लक़ला हुरूफ मुशद्दद हो तो इन्हें किस कहाँ पढ़ेंगे? जब क़लक़ला हुरूफ मुशद्दद हो तो इन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे। आप ये बताइए हमज़ाए साकिना को किस कहाँ पढ़ेंगे? हमज़ाए साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। आप ये बताइए नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं? नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और वो ये है नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इक़लाब। आप इजहार का कायदा सुनाइए। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। आप ये बताइए हुरूफ हल्की कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ हल्की 6 हैं और वो ये है हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। मोहम्मद रज़ा भाई आपने मेरे सवालों के जवाबात बहुत उसने खूब दिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। मोहम्मद मुकर्रम भाई आपने मुझसे बहुत अच्छे सवालात किए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ है कि आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। इस जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए, सुकून के साथ तशरीफ रखिए। ये जो बच्चे आपके सामने अभी जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया उनके लिए ये कुछ इनामात हैं। लोग हैरत के साथ